of what is the key gist of the passage, especially when the passage is long. And there were like some other doubts related to the issues that people are facing in reading comprehensions. So that's why I basically thought कि चलो यार फिर एक session reading comprehension के लिए लेते हैं, क्योंकि like what I remember is that the last session of reading comprehension which I took was I think only in November. November के बाद we didn't had any session for reading comprehensions. So here we are today, guys, and I like just a small advice to all of you. You know, when I'll give the passage, so don't just sit. I'll be discussing every passage, but I would like you to take part actively. Read the passage, try to come to the answer, and write your answer in the chat box. क्योंकि मतलब पैसिव लर्निंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. The best learning is when you actually actively participate in the process. And there's this small issue here, whenever anyone writes any message in the chat box, so it gets popped up, like it is visible on the screen even if you haven't opened up the chat box. तो इससे क्या होता है कि when someone writes the answer for the question, so it gets automatically visible to all others. तो यार ये प्रॉब्लम मतलब I try to fix but कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे. So while you're solving the when you're reading the passage, trying to find the answer, so just put your hand or put a piece of paper on the screen. जहाँ पे मतलब I think on the left side it pops up. So just put something over there so that you're not able to see it, and you are able to solve the passage without any interference from others. कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं. तो चलो यार, it's 3:04. Let's start. So first of all, a very brief introduction about myself and Vaibhav. Vaibhav graduated from IIT Delhi in electrical engineering in 2021, and he has written mains every year in 2022, 23, 24, and he's appearing for the personality test this year. Let's wish that he's able to get his desired service this year. Then about me, I graduated from BITS Pilani in mechanical engineering in 2021, and I've given this exam twice, in 2022 and 2024, and I wrote mains in both of these years. So chalo, let's start here. Today is, I think, the 9th session of our reading comprehensions, and let's start from the basics एक बार पहले, because I see a lot of new people have joined. वैसे I've explained this thing like multiple times in my previous sessions, but since there are a lot of new faces today, so I'll just go about the basics once more. तो देखो यार, दो ना key terms हैं. One is inference and the other is assumption. ठीक है, these are the favorites of UPSC, जो भी passage related questions होते हैं. So either UPSC is asking what is the inference from this passage, or it is asking what is the assumption from this passage. So first, let's try to understand the dictionary meaning of these two words, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत confusion होती है कि inference में क्या करना है, assumption में क्या करना है. They just keep running behind inference में क्या करना है, assumption में क्या करना है, but they don't stop to understand कि inference और assumption होती क्या है. तो पहले assumption की बात करते हैं. assumption क्या होता है ना, कि हमने अपने माइंड में कुछ भी सोचा किसी भी चीज के बारे में. assumption होती है कि मतलब मान लो like from the writer's perspective, एक let's say you have to write a passage of 50 words या 60 words, तो आप हमेशा अपने माइंड में कुछ तो assume करोगे ना लिखने से पहले, ठीक है. that is called assumption. किसी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं या हमारा क्या ओपिनियन है, या कभी कभार इसे स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, वो भी एक assumption हो सकती है. ये सारी चीजें आती हैं assumption में. मतलब अगर हम पैसेज के रिस्पेक्ट में बात करें, सो द पर्सन हु इज राइटिंग द पैसेज, उसने क्या सोच के लिखा, मतलब उसके क्या बिलीफ है, अंडरलाइन बिलीफ क्या है उसका, ठीक है. ये मोटा मोटा हमारा ये assumption होती है. एंड
पर इन्फ्रेंस क्या होती है? लेट्स से ये पैसेज लिखा किसी ने भी, कुछ सोच के लिखा, अब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूँ, तो मैं इससे क्या लर्निंग ले सकता हूँ, या मेरे को क्या अंडरस्टैंड किया मैंने इससे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। मतलब जो अजम्पशन होती है दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द राइटर, कि जो बंदा इस पैसेज को लिख रहा है, एंड इन्फ्रेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रीडर, ठीक है। मतलब जब भी हमारे को एक पैसेज दिया गया एंड वी आर आस्क्ड कि व्हाट इज द अजम्पशन, अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है, तो हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करना है उस पैसेज को, सोचना है कि अगर लाइक इफ आई वाज राइटिंग दिस पैसेज तो मैं क्या सोच के लिखूंगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे थ्रू एन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत ना बेसिक चीज है यार, अगर हमारे को ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए आगे मूव अहेड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बस की चीज ये दिमाग में रखो, जब भी अजम्पशन पूछिए तो हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करना है, ये सोचना है कि द पर्सन हु हैज रिटन दिस वेरी पैसेज उसने क्या सोच के लिखा होगा, उसका क्या बिलीफ होगा ये चीज लिखते हुए। एंड इन्फ्रेंसेस की एज अ रीडर मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने जिसने भी लिखा क्या सोच के लिखा, आई हैव लाइक मेरे को कुछ नहीं लेना देना उस चीज से, मेरे को सिर्फ ये सोचना है कि ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा, ठीक है, या फिर उसने क्या बताया मुझे। तो आई होप लाइक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट, कि इन्फ्रेंस और assumption अलग होते हैं। Some people were asking कि is inference a subset of assumption, but assumption is not a subset of inference, ऐसे वैसे। तो देखो यार, मैं बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स अज्यूम कि जो रेड एरिया है, दिस इंडिकेट्स इन्फरेंस, और मतलब जो ये वाला सर्कल है पूरा, ये लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड वाला सर्कल है, लेट्स अज्यूम दिस रिफ्लेक्ट्स इन्फरेंस, एंड ये जो ब्लू वाला है दिस इंडिकेट्स assumption। तो कभी कभी ऐसा होगा कि बोथ इन्फरेंस एंड assumption वो अलग अलग होंगे, इंटायरली डिफरेंट होंगे, कि आपने एक पैसेज पढ़ा एंड नाउ जो भी आप assumption ले रहे हो, मतलब जिस बंदे ने पैसेज लिखा उसने क्या अज्यूम किया था लिखते हुए, एंड आप क्या उससे इन्फर कर पा रहे हो। कभी कभार होगा कि वो दोनों चीजें डिफरेंट होंगी, एंटायरली डिफरेंट होगी, अभी हम देखेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। एंड कभी कभी हो सकता है कि बोथ assumption एंड inference दे may end up as the same thing, जो assumption है वही inference है, ठीक है। तो बस एक जो की रूल है अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि assumption और inference हो सकता है कभी कभार सेम हो, और हो सकता है कभी कभार वो entirely डिफरेंट हो। तो ज्यादा हमारे को इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल मान के चलें, क्योंकि देखो लैंग्वेज है यार, ये लैंग्वेज में कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड जो ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इन्फ्रेंस और असम्पशन कभी कभार सेम भी हो सकते हैं किसी पैसेज के लिए, और कुछ पैसेजेस ऐसे भी होंगे जिसमें असम्पशन एंड इन्फ्रेंस क्लियरली डिफरेंट है, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल की तरह इसको देखने की कोशिश करते हैं। अभी पढ़ना मत इसको, एक बार मेरी बात सुनो पहले। मान लो कि यार आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, इंडिया में स्पोर्ट्स का क्या ओवरऑल एटमॉस्फेयर है उसके रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है, एंड आप मन ही मन में ना आप कहीं ये सोचते हो कि यार जो क्रिकेट है, क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर हो रहा है। हम एज अ कंट्री बाकी स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि हम क्रिकेट के ऊपर मतलब कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, हमने क्रिकेट को एक रिलीजन ही बना लिया अपनी कंट्री में। ये बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट लेकिन हो सकता है कि आप ये आपके मन में ये अजम्पशन है, ठीक है। तो अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और आप ये अज्यूम करते हो, तो आप कैसी बात बोलोगे। आप इस पैराग्राफ को अब एक बार रीड करके देखो कि इन इंडिया cricket's unparalleled popularity has cast a long shadow over other sports, diverting attention and resources. While cricket thrives as a cultural phenomenon, disciplines like hockey, athletics, and football often languish in obscurity, deprived of infrastructure and support. This disproportionate focus underscores the need for a balanced approach to nurture a more inclusive, diverse sporting ecosystem. मतलब अब मान लो कि मैं किसी थर्ड पर्सन को
ये पैराग्राफ पढ़ाता हूँ, तो वो क्या अज्यूम करेगा? मतलब आपने किसी बंदे को ये बात बोली, ये सेंटेंस, ये पैसेज किसी बंदे को आपने किसी कॉन्वर्सेशन में बोला, तो वो क्या अज्यूम कर सकता है कि आप यही सोचते हो कि जो क्रिकेट है उसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे अजम्पशन पूछ लूँ तो अजम्पशन भी यही है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि आपने इसको रीड किया तो आप क्या इन्फर कर पा रहे हो, तो आपकी इन्फ्रेंस भी यही होगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दोज पैराग्राफ्स जिसमें जो आपने अज्यूम किया वही मैं इन्फर कर पा रहा हूँ, कुछ अलग मैं इन्फर नहीं कर पा रहा। मतलब जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे इन्फ्रेंस और अजम्पशन सेम हो सकते हैं किसी पैसेज में। सो दिस इज वन ऑफ दोज पैसेज। मतलब इसको पढ़ के आपको यही समझ में आएगा कि जो भी बंदे ने ये पैसेज लिखा है, व्हाट ही इज अज्यूमिंग इज कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। मतलब सेम पैराग्राफ को लेते हैं, बट थोड़ी सी हमने ये वाली लाइन ऐड कर दी इसके अंदर। टू एड्रेस दिस डिस्पैरिटी, a comprehensive a comprehensive strategy is essential. Focused investments in infrastructure, grassroots programs for diverse disciplines, and fostering a culture of inclusivity. मतलब आपने अब ये बात बोल दी, अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो गेम है वो चेंज हो जाती है। इसमें हमारे को एक इन्फ्रेंस मिल गई कि जिस बंदे ने भी पैसेज लिखा उसने ऑल दो अज्यूम तो यही किया है कि क्रिकेट की वजह से जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन उसने हमारे को एक इन्फ्रेंस दे दी। इन्फ्रेंस दे दी मतलब कि हमारे को कुछ समझा दिया, हमारे को कुछ एक मतलब कुछ गाइड कर दिया, कुछ हमारे को दिशा दिखा दी, या फिर कुछ हमारे को लेसन दे दिया, कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दी। इन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि अगर हमारे को जो बाकी स्पोर्ट्स में मतलब डिस्पैरिटी है क्रिकेट के कंपैरेटिव, अगर उसको हमारे को एड्रेस करना है तो हमारे को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रास रूट्स प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम एक बेसिकली कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी फॉर अदर स्पोर्ट्स को हम डेवलप कर सकें। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज पैसेज जहाँ पे आपका अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस दोनों अलग हो जाते हैं। तो आई होप एवरीवन इज लाइक क्लियर विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर किसी को भी अभी भी इस कॉन्सेप्ट में कुछ इशू है बेसिक, जो मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन करे, तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज आज हम काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अराउंड 10 to 12 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड दिस दीज ऑल दोस प्रॉब्लम्स वुड बी बेस्ड upon the very understanding of these basics. So if you have any doubt, you can ask it, and if not, we can move ahead. सर इसमें assumption और inference क्या होगा इस वाले पैरा में? ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे, यस सर। तो देखो assumption क्या है, आपने जो ब्लैक वाला पार्ट है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम जो ऊपर पैराग्राफ था, एंड ये सारा एग्जैक्टली सेम है। तो व्हाट डज दिस मीन? मतलब जिस बंदे ने भी ये पैसेज लिखा होगा उसने कहीं ना कहीं मन में अज्यूम किया कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं। अब हो सकता है बात सही है या हो सकता है बात गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने ये अज्यूम किया कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके का पैराग्राफ लिखेगा। लेकिन ये लिखने के बाद उसने क्या कहा, उसने ये भी बताया कि अगर आपको ये डिस्पैरिटी कम करनी है, द गैप बिटवीन क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स, यू हैव टू एड्रेस दैट, सो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। तो ये हमारे को इन्फ्रेंस हो गई। ठीक है, दिस ग्रीन पार्ट इज द इन्फ्रेंस, and from this black part we can get an idea about what was the assumption. Okay sir, thank you. Okay, welcome. So I think we are good to go. These were the basics. अगर अभी भी किसी को डाउट है तो we would be taking up some questions. We will be testing our basics. So I'm sure कि a lot of your doubts would get cleared by solving the passages. And like I'll request everyone to actively read the passages and solve them. All of the questions that I'm discussing today, they are very good questions. They would leave you with good scope of making an error. So just be, patiently read the passage. So this is our passage. Take about 2 to 3 minutes. And when you are done, write your answer in the chat box. And those who haven't solved
जब तक सॉल्व नहीं कर लेते तब तक लाइक पुट सम पीस ऑफ पेपर और समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, ताकि बाकी लोग जो आंसर कर रहे हैं आपको ना दिखे. Okay, guys, 1 minute more. It's good. A lot of you are answering. Last 30 seconds, guys. एक्सक्यूज मी सर. हेलो Yes. Yes. सर, मेरा ये डाउट था ना कि लाइक जो आपने लास्ट पैसेज दिया था और उससे ऊपर वाला जो पैसेज था, तो दोनों के पैसेज अजम्पशंस के अकॉर्डिंग सेम होंगे? लाइक दोनों के अजम्पशंस सेम आने चाहिए या फिर कुछ देखिए added देखो, दोनों के assumption सेम होंगे, क्योंकि मतलब आप दोनों पैसेजेस में देखो, बंदा बात तो सेम ही कह रहा है ना, कुछ अलग तो नहीं कह रहा. देखो वो दोनों पैसेजेस में जो उसकी अंडरलाइन थॉट है वो यही है कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स आर सफरिंग. उसका अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन जो थिंकिंग है वो दोनों पैसेजेस में सेम है. इट्स ओनली दैट इन द सेकंड पैसेज ही इज आल्सो गिविंग सम सोल्यूशन कि हम सिचुएशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं एंड उसको हम इम्प्रूव ऐसे करेंगे. तो मतलब ये थोड़ा सा ना, आप जैसे इफ यू प्रैक्टिस विद मल्टीपल पैसेजेस, सो देन you'll come to know this fine difference between assumption and inference. ठीक है, वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जैसे अभी टुडे विल लुक इन द क्वेश्चंस. तो चलो यार एक बार ये वाला पहले पैसेज देख लेते हैं. I see a lot of people have been answering B, but I may tell you that B is not the correct answer. B is the wrong answer. So let's discuss कि ऐसा क्यों है. I think all of you would have read the passage, so I won't go into reading the passage word by word. I'll just explain why statement 1 and 2 में क्या सही है क्या गलत है. So the first मतलब जो पैसेज है ओवरऑल, इट्स टॉकिंग अबाउट कैसीनोज एंड उनका जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट आ रहा है कंट्री के अंदर, कंट्री की सोसाइटी के ऊपर.
एंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बेसिकली हैज शट डाउन द कैसीनोज ताकि ओवरऑल जो सोसाइटी है, ओवरऑल जो कंट्री है, उसके अंदर जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए. तो ओके, नाउ वी आर आस्क्ड द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस. देखो गाइस, वन थिंग, जब भी हमारे को इन्फ्रेंस या अजम्पशन पूछी जाए तो वी हैव टू स्टिक टू द पैसेज. मतलब थोड़ा बहुत 2-3% हम अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ये लाइन लिखी है तो उसका मतलब तो यही होगा, या इससे हम ये बात कहना चाह रहे होंगे. लेकिन कुछ अपना बहुत आउट ऑफ द वे जाके लॉजिक नहीं लगाना है हमारे को, कि हम कुछ अपनी ही चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, डजंट मैटर. वी हैव टू स्टिक टू व्हाट वी आर टोल्ड इन द पैसेज. अभी ऐसे पहली लाइन देखते हैं. Shutdown of POGOs is expected to improve the Philippines' international relations, particularly with the US. अब मतलब आप अगर लॉजिक से सोचो कि वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं, एंड आप अपनी सारी जीएस की नॉलेज लगा लो कि फिलीपींस के साथ तो यूएस का, तो आप सोच सकते हो एक बार को कि हाँ यार ये स्टेटमेंट शायद सही होगी. लेकिन हैज द वर्ड यूएस एनीवेयर बीन मेंशन्ड इन दिस होल पैसेज? No. Nowhere we are, nowhere it is mentioned कि फिलीपींस के रिलेशंस यूएस के साथ कैसे होंगे. मतलब यूएस वर्ड ही मेंशन नहीं है. तो क्लियरली यार हम ये स्टेटमेंट को तो क्रॉस ऑफ कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ POGOs outweigh social and legal costs according to the passage. Now read the passage once more. Here we are told that various criminal activities, including telephone scams, human trafficking, money laundering, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एंड देन नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू द वायलेंस. जो लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो रही है इन सारी चीज़ों की वजह से. तो अब जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेलीफोन स्कैम्स हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे को जो सोशल वो है, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ तो आइडिया दे रहे हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं. चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी है. लेकिन टेल मी फ्रॉम वेयर कैन यू कंक्लूड कि लीगल कॉस्ट मेंशन है, लीगल कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही हैं, वो कहाँ पे मेंशन है? बहुत डायरेक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं है. मतलब नो वे वी आर बीइंग रेफर्ड कि जो पोगोज है उससे इकोनॉमिक वेल्थ तो जनरेट हो रही है, लेकिन लीगल कॉस्ट बहुत ज्यादा है. सोशल कॉस्ट का हम आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा सा भी बेसिक सोचने से पहले कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल दीज सोशल ईविल्स. बट लीगल कॉस्ट क्या होती है कि लेट्स से कोई केस हो गया, अब उसके बाद उसकी पूरी प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस का रोल, ये सारी चीजें होती हैं लीगल कॉस्ट. बट नोवेयर वी आर स्पेसिफिकली टोल्ड कि लीगल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो थ्रू दिस लॉजिक सेकंड इज आल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स डी, दैट नाइदर ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वैसे कि यहाँ पे एक बार ना इसमें सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक को लगभग भी है, इकोनॉमिक भी है, तो हमारी टेंडेंसी बस जल्दी में रहती है कि सही है. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब इस स्टेटमेंट्स फ्रेम करके दियो. तो आई होप इफ आना यू हैव रेज्ड योर हैंड, इट्स व्हाट्स योर डाउट? सर अगर इसमें लीगल कॉस्ट नहीं लिखा होता तो क्या सेकंड ऑप्शन सही होता? Yes, in that case I would have marked it correct, क्योंकि जो social word है that is I'm taking जो social cost है वो human trafficking से I'm connecting, क्योंकि human trafficking is what, वो basically एक societal problem ही है. अगर human trafficking हो रही है तो आपकी society पे ही impact आ रहा है. तो in that case I would have considered it correct. और सर इस पैरे में assumption अगर होता कि assumption क्या होगा इस पैरे का?
देखो यार, assumption इसके अंदर अगेन मैं वैसे ही बोलूंगा कि थोड़ा सा इसके अंदर ना ग्रे एरिया आ जाता है, ओवरलैप आ जाता है assumption और inference के अंदर। मतलब इसके अंदर उसने अज्यूम भी यही किया है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं दे आर आउटवेइंग द सोशल एंड इकोनॉमिक गेन्स, जो भी कैसीनोज वगैरह हैं उनके। तो कुछ अलग से इसके अंदर, और उसके अलावा तो मुझे इन्फ्रेंस सॉरी assumption समझ नहीं आ रहा। मैं तो इसके अंदर वही बोलूंगा कि देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन इन्फ्रेंस एंड assumption। तो बाकी यार ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। इससे वो assumption का क्वेश्चन अगर देते हैं एंड व्हाट आर दे गिविंग इन द ऑप्शंस, थोड़ा उस पे भी डिपेंड करेगा। बट इसमें रिगार्डिंग अलग से क्या कहा जा सकता है। Okay, sir. Thank you. तो ओके, so those of you who have marked B, given B as your answer, I hope you are now you have understood कि B option, second option क्यों गलत है। And this is going to be a very repeating theme today. You have to be very cautious while reading the passage. So again, guys, take 2 to 3 minutes. This is a easy passage, so don't take more than 2 minutes. And when you are done, write your answer in the chat box. It's good that answers have started coming in. Just 30 more seconds, guys. This is a very easy passage and very small one. So you shouldn't be taking more time. Okay, so let's discuss it. देखो, a central message of modern development economics is the importance of income growth, which means growth in GDP. In theory, rising GDP creates employment and investment opportunities. फिर आगे भी यही बात करी हुई है कि households, communities, governments, and basically अगर income growth होती है, GDP growth होती है, so that is essential for a good life. And then today GDP has assumed a significant place in the development lexicon, that if someone mentions economic growth, they are basically they would mean growth in GDP. तो यहाँ पे what the author is trying to say कि हमारे को अगर ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, so that is linked with GDP. अभी बात हो सकता है सही हो गलत हो, आप अग्री करते हो ना अग्री करते हो, लेकिन जो ऑथर है वो इस assumption से दे रहा है, like this is the assumption of the author कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें करनी है तो that would mean basically growth in GDP. ठीक है, एंड और भी बाकी काफी छोटी छोटी चीजें लिखी हैं अपने assumption को जस्टिफाई करने के लिए ऑथर ने।
So now let's go through the options. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. तो हम हर assumption को read करेंगे and थोड़ा सा reverse engineer करेंगे कि अगर हम ये passage लिख रहे होते या जो author है वो क्या सोच रहा होगा ये passage लिखने से पहले, क्या वो statement 1 और statement 2 है या नहीं. ठीक है, so what the statement 1 says is rising GDP is essential for a country to be a developed country. अब देखो यार इसमें दो तीन चीजें हैं. फर्स्टली पहले तो इतना थोड़ा एक्सट्रीम सा कीवर्ड आ गया हमारा एसेंशियल. ठीक है, ऐसा मतलब ये बहुत एक एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट हो जाती है जब भी इतने एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना एसेंशियल. अगर हमारे को अनलेस और अनटिल इतना एक्सट्रीम वर्ड पैसेज में मेंशन नहीं है तो हमारे को एक ना अलार्म बेल साउंड हो जाना चाहिए, एक रेड फ्लैग दिखना चाहिए हमारे को कि इतना एक्सट्रीम वर्ड यार पैसेज में तो कहीं पे मेंशन है नहीं, ये सही हो सकता है क्या. एक यहाँ पे अपना रेड फ्लैग आपको देना चाहिए. फिर वो कह रहे हैं कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री. अब देखो यार मतलब पूरे पैसेज में कहीं पे डेवलप्ड कंट्री को भी एज अ कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है. मतलब किसको हम डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं, ऑथर किसको डेवलप्ड कंट्री कह रहा है. ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें थोड़ी सी आप लगा लो कि यहाँ पे एक रेड सा फ्लैग आपका बन जाता है. तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई वुड से स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. कि ऐसा मतलब एसेंशियल इतनी इतनी बात तो कहीं पे नहीं लिखी यार. ठीक है, मतलब ऑथर ने क्या सोचा कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो दैट वुड मीन कि आपका जीडीपी ग्रो हो रहा है. ठीक है, या फिर वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर. लेकिन वो ये कहीं पे नहीं कह रहा कि अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपको जीडीपी इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा. ऐसा वो कहीं पे नहीं कह रहा. And second is rising GDP guarantees a reasonable distribution of income to all households. मतलब देखो अब ये ना ही कहीं पैसेज में ये चीज लिखी है. अगर आप चलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप ऐसे भी सोचो यार ये तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मतलब तभी तो हम जीडीपी पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि अभी जैसे इंडिया है या फिर चाइना है, हमारी जीडीपी बहुत इंक्रीज हो गई है बट जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी काफी कम है. So that is why there is inequality in the country, and that is the sole reason कि लेकिन reasonable distribution of income नहीं है. So due to this, both 1 and 2 become wrong. तो ऐसी कोई भी assumption नहीं है जो ये दोनों statements लिखी हैं इनमें से कोई भी assumption नहीं है जो author ने ली होगी ये अपना passage लिखने से पहले. ठीक है, हमारे को बस ये माइंड में रखना है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कंफ्यूज होने का चांस है कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री. मतलब इतनी अफर्मेटिवली इतना अथॉरिटेटिवली कहीं पे नहीं मेंशन किया पैसेज के अंदर. ठीक है, सो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. तो आई होप एवरीवन इज मोस्टली वैसे मैं देख रहा हूँ यू पीपल हैव आंसर्ड डी ओनली. सम ऑफ यू मेंशनड ए एंड सी. तो आई होप नाउ यू would have a clarity why D is the correct answer. So let's move on to the next passage. Now this passage is a fairly tricky one. There's ample scope for you to make an error. So I would give you 3 minutes, 2 to 3 minutes. Don't take more than that. And when you're done, give your answer in the chat box. Again, you have to tell the assumption.
Okay, answers have started coming in. Last 30 to 40 seconds, guys. Chalo, but let's discuss it now. I'm seeing a lot of you have answered, like most of the answers are either C or either D. So some मतलब सारे आंसर्स दिए हुए हैं यार आप लोगों ने A B C D. तो चलो फिर let's discuss it. तो पैसेज क्या कह रहा है कि no superhuman brain is required to avoid the various foolish opinions that many of us hold. कि मतलब जो हम कुछ बहुत stupid चीजें हम सही मानते हैं या superstitions में believe करते हैं, अगर हमारे को ऐसी foolish चीजें, अगर हमारे को से उनको डिबंक करना है या उनको उनमें बिलीव करने से बचना है, तो कोई बहुत सुपर ह्यूमन ब्रेन नहीं चाहिए. A few simple rules that will keep you away not from all errors but from silly errors. कि मतलब अगर हम बहुत कुछ सिंपल सी एक दो सिंपल रूल्स हैं, फ्यू सिंपल रूल्स, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम एटलीस्ट सिली एरर्स से तो अपने आप को बचा लेंगे. If the matter is one which can be settled by observation, make the observation yourself. This is the keyword, guys, observation. कि अगर कोई चीज है वो ऑब्जर्व करने से ही आप मतलब यू कैन असर्टेन कि वेदर ये चीज सही है या गलत. तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप उस चीज को मतलब यू कैन सेटल दैट डिबेट. अब इस चीज को समझाने के लिए ऑथर क्या एरिस्टोटल का एग्जांपल देते हैं कि एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट women have fewer teeth than men by the simple method of counting the teeth of Mrs. Aristotle. तो मतलब कितना सिंपल सा एग्जांपल ऑथर ने अपनी थिंकिंग को अपने पिछले सेंटेंस को वेरीफाई मतलब उसको टू ऐड वेट टू हिज क्लेम एक उन्होंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिख दिया. थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डू नॉट नो इज अ बैड मिस्टेक टू व्हिच मेनी ऑफ अस आर प्रोन. कि मतलब जब हम सोचते हैं कि हमें पता है लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता होता. सो दिस इज अ मिस्टेक जो हम बहुत सारे लोग करते हैं. तो नाउ लेट्स लुक एट द पैसेज, लुक एट द क्वेश्चंस कि क्या अजम्पशन ऑथर ने ली होगी सोचते हुए. तो फर्स्ट इज इवन ग्रेट पीपल लाइक एरिस्टोटल कैन मेक अ मिस्टेक. मतलब हाँ हो सकता है कि ऑथर ये चीज बताना चाह रहे हो कि एरिस्टोटल इतना महान आदमी था और उन्होंने भी मिस्टेक कर दी. बट ये तो बहुत ही मतलब नैरो सा अजम्पशन हो जाएगा. हमें थोड़ा ब्रॉड चीज पे फोकस करना है. और मतलब एरिस्टोटल को ही ग्रेट बताया भी नहीं, तो मतलब क्लियरली ये तो हम assumption नहीं होगी. अगर होगी भी तो बहुत ही माइनर सी assumption होगी. We have to look for the more suitable assumptions. Second is silly mistakes can be avoided by resorting to thinking. Okay. चलो एक पल को मान लेते हैं शायद ये बात सही होगी, इसको भी benefit of doubt देते हैं. Third option, one does not have to be exceptionally clever to avoid making silly mistakes. Okay. चलो उसको भी एक बार तो सर्कल कर लेते हैं, हो सकता है शायद सही हो. And fourth is, we are prone to making avoidable mistakes since we do not care to think for ourselves. अब ये भी मतलब देखो थोड़ा सा ये उधर चलेगा कि do not care to think for ourselves. चलो इसको भी थोड़ा सा benefit of doubt दे देते हैं. ये तीन statements हैं जो थोड़ी confusing है. Now let's debunk each of them like option by option. पहले silly mistakes can be avoided by resorting to thinking. अब कीवर्ड देखो पूरे पैसेज का क्या है, ऑब्जर्वेशन. कि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को तो हम अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. थिंकिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे. स्टेटमेंट ठीक है, सिली मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड बाय रिसॉर्टिंग टू थिंकिंग. अगर हम नॉर्मल वर्ड में सोचें तो अगर हम ठीक से थिंकिंग करेंगे तो हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज
जो कीवर्ड है दैट इज ऑब्जर्वेशन, तो ऑन दैट अकाउंट ऑप्शन बी बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, नाउ ऑप्शन डी, हम सेम चीज ऑप्शन डी में अप्लाई करते हैं कि वी आर प्रोन टू मेकिंग अवॉइडेबल मिस्टेक्स सिंस वी डू नॉट केयर टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स। अगेन फिर से वो थिंकिंग पे आ गया, बात थिंकिंग की है ही नहीं, बात है ऑब्जर्वेशन की। जो पूरा एरिस्टोटल का एग्जाम्पल दिया है वो ऑब्जर्वेशन पे दिया है, थिंकिंग पे नहीं दिया। थिंकिंग से तो उसने मिस्टेक करी। एरिस्टोटल ने सोचा कि जो विमेन है दे हैव फ्यूअर टीथ देन मेन, उसने यही तो गलती करी कि उसने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर वो ऑब्जर्व कर लेता तो उसकी थिंकिंग सही हो जाती। तो इवन इन ऑप्शन बी जो कीवर्ड है वो थिंकिंग की तरफ दे रहे हैं, अगेन दैट बिकम्स रॉन्ग। एंड सेम इज द सिचुएशन विद ऑप्शन डी। सो नाउ what are we left with? We are left with option C. One does not have to be exceptionally clever to avoid making silly mistakes, which is the very first line of this whole passage. ठीक है, बाकी एक assumption इसका ये भी हो सकता था कि by observation we can avoid silly mistakes, but since that is not an option, so उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. But yes, that could have been one of the assumptions कि by thinking, by observation, we can avoid silly mistakes. That is why C is the correct answer. Those you have marked otherwise, I hope you have understood why. Mostly the wrong answers that I'm seeing in the chat box are D. So I guess everyone is clear कि why D or B is not the correct answer. So good, yeah. Let's now move upon this next question. This I think is a PYQ from शायद से 2021 का है. But again, this is a good question. That's why I picked it up. This leaves a scope for making an error. So don't take more than 2 minutes here. We are running short on time. We have, I think, 4-5 और questions हैं जो हमें discuss करने हैं. And when you are done, write your answer in the chat box. Don't go for what others are answering. अगर आपने बाकी किसी और का आंसर देख भी लिए तो don't assume कि वो सही होगा, क्योंकि आज the questions are on the trickier side. I think I have taken this question in some of my previous session as well, but those who are consistent with me since the starting, they would be able to solve it correctly. But today we have a lot of new members who have joined the session. Good, your answers have started to come. Just take 30 more seconds and then we'll discuss it. You are asked the inference. Inference का मतलब ये है कि हमारे लिए क्या लर्निंग है, हम क्या टेक अवे ले रहे हैं इस पूरे पैसेज से, ये सोच के आंसर करना. So I think time's up. Most of you have answered C. Exception of I think 2 or 3 people who have answered something else. So assuming that all of you have read the passage, I won't go into reading the passage. I'll just quickly glance through the options कि हमें कैसे options को सही करना है, eliminate करना है. Okay, so the option A is our cities need to have a well-defined administrative setup with sufficient autonomy. देखो यार,
अगर मैं सिर्फ इस वर्ड को डिस्कस करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सो वेयर इन दिस होल पैसेज आर वी एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ पे बात हुई है? मतलब इसके अंदर मैंने जैसे बताया ना कि लाइक वी हैव टू टेक द पैसेज ऑन इट्स फेस वैल्यू। कुछ 2-3% तक हम सोच सकते हैं कि अच्छा यार अब क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज का तो मतलब क्या ही होता है कि अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट पैटर्न्स एट द ग्लोबल लेवल। लेकिन अब मुझे इससे ये नहीं सोचने लगा ना कि हो रही है सिस्टम में या सी सरफेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये सब नहीं सोचने लगा ना मुझे। अगर वो मैंने सोच लिया तो वो एक ब्लंडर है। सिर्फ हमारे को जो भी इस पैसेज में लिखा हुआ है उसको एकदम फेस वैल्यू पे लेना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, और उतना ही लेना है। मतलब कुछ अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्लाइमेट चेंज लिखा है इसका मतलब ये होगा कि सी सरफेस लेवल इंक्रीज हो रहा है या ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इतनी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है? वो जीएस के पेपर से लिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सफिशिएंट ऑटोनॉमी, चलो मैं कहता हूँ एक बार को हम सोच भी लेते कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, सफिशिएंट ऑटोनॉमी तो मतलब बहुत ही ज्यादा फार-फेच्ड थिंकिंग होगी। सेकंड, बी ऑप्शन, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन यार मतलब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये मतलब कहाँ से वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और उसके लिए मतलब ये जो चीज है लाइक इट इज एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस। अगेन इस चक्कर में ये गलत हो जाता है। फिर मैं फोर्थ डी ऑप्शन देख लेते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। पहला वर्ड ही मतलब आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ में कहीं पे पीपीपी का मेंशन ही नहीं है। स्ट्रेट अवे यू कैन एलिमिनेट इट। So what we are left with, C, to maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability related interventions, which I think is mentioned in this line, sustainable solutions. So this was a very easy one. Let's move on this. Okay, now guys, I will just give you 1 minute to solve this. No 2 minutes.